Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another public university of Italy, that is University of Siena. So before starting my video, I would like to request that please subscribe my channel and like my video, and you can also comment down below if you have any questions. If we talk about the university first before jumping into our application process, so as I said, University of Siena is a public university of Italy. It was founded in 1240. If we talk about its ranking, so according to QS World University Ranking 2024, it has been ranked from the position of 731 to 740. So it comes under top 800 universities of the world. If we talk about the minimum CGPA, so it is around 2.5, and acceptance rate for this university is around 80%, which is not bad. So that was the information about the university. Now we will come on to the official website of the university and we will start our application process. So to start your application process, you will come onto the portal of this university, and for that you will click on the admission application button. After clicking on the button, here you can see the option how can I apply, so you will click on that option. After clicking on how can I apply, here you can see they've given us links of the portal from where we will apply for this university. So we'll click on one of these links. After clicking on that link, it has taken us to the portal. This is the portal, and from here we'll apply for the admission in this university. So first of all, we have to register ourselves. So for that, we will have to click on the top right corner. Here you can see sign in slash register button. You will click on that button. After clicking on that button here, as you can see, I've already registered my email, but if you're a first time user, then you will write down your email address over here. After writing your email address, you will click on the continue button. After clicking on the continue button here, you will see if you are a new user, click on the button below to get going. So if you are registering a first time on this website, then you will click on this button that says send one time link slash register. So as you can see, I have received a link in my email address, and from here I will activate my account and complete my registration. And then I'll approve my username and email address. And after that, I'll log into the portal. After logging into the portal, here you can see the data that you have all mentioned in your registration process. But since I was already registered on this website, so I didn't have to mention my username and other details. But if you are first time registered on this portal, then you will enter your detail. After logging in onto this portal, here you can see the continue button. We'll click on the continue button. कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे राइट साइड पे यू कैन सी फाइंड प्रोग्राम्स का ऑप्शन. सो यू विल क्लिक ऑन द फाइंड प्रोग्राम्स ऑप्शन. फाइंड प्रोग्राम्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हेयर यू कैन सी आपके पास डिफरेंट फिल्टर्स है. सो यू विल फिल्टर आउट योर प्रोग्राम एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो अगर आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप जो है बैचलर सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने ओनली शो प्रोग्राम्स आई कैन अप्लाई टू सेलेक्ट करना है, और स्टडी लैंग्वेजेस में यू हैव टू चूज़ इंग्लिश लैंग्वेज. आफ्टर सेलेक्टिंग योर रेलिवेंट ऑप्शंस यू विल क्लिक ऑन द फाइंड प्रोग्राम्स बटन. तो हमारे पास बैचलर्स में यहाँ पे जस्ट एक ही कोर्स पढ़ाया जा रहा है. इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो. इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बैचलर्स के लिए जो है वो क्या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. तो चंद ही यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चंद ही जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, जिनमें से एक जो है ये यूनिवर्सिटी है, और इसमें से है ये इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो आपको पढ़ाया जा रहा है बैचलर्स में, और ये फुल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है. तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हो. Now, if you're applying for a master's program, you will choose the master's option from here, and then you will click on the find programs. तो हमारे पास मास्टर्स में भी हैव अराउंड 15 ऑप्शंस
तो इसमें से आप जो है किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास इसमें डिफरेंट जो है वो कोर्सेज है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजीज़, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, यूरोपियन स्टडी, फाइनेंस। सो जो है काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के कोर्सेज जो है वो इसमें अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जो है अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। सो फॉर दैट जो है आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब जो है इस यूनिवर्सिटी में 2 इनटेक्स थे। पहले इनटेक का जो है वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, अभी इनका सेकंड इनटेक जो है वो ओपन हो चुका है। तो सेकंड इनटेक का आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है अप्लाई नाउ का, तो आपने इस पर अप्लाई कर देना है। नीचे जो है इन्होंने लास्ट डेट भी लिखी हुई है। डेडलाइन जो है वो है अप्रैल 29, 2024। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे है कि आप मज़ीद ऑप्शंस भी यहाँ पे डाल सकते हो। सो यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स इन वन एप्लीकेशंस। तो आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐड मोर चॉइसेस पे क्लिक करके मज़ीद प्रोग्राम्स जो है वो सेलेक्ट कर लो। बट फॉर द टाइम बीइंग जो है मैं यहाँ पे जस्ट एक प्रोग्राम ही सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है यू विल कम ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन आपका है प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल में जो है आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, फिर आपने सेकंड नेम लिखना है। सेकंड नेम के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल या फीमेल। फिर उसके बाद जो है आपने सिटीजनशिप चूज़ करनी है अपनी कंट्री। सिटीजनशिप के बाद जो है आपने यहाँ पे नीड अ स्टडी वीज़ा टू एंटर इटली। सो येस, हमें स्टडी वीज़ा चाहिए होगा, हमने यहाँ पे येस चूज़ करना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी फॉर्मल फोटोग्राफ जो है वो नीचे अपलोड करनी है। फॉर्मल फोटोग्राफ जो है वो आपकी JPEG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की नॉर्मल फोटोग्राफ जो है वो आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दो, या फिर आप निकाल के एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर दो। फिर उसके बाद जो है आपके पास पासपोर्ट का डेटा, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है। फिर उसके बाद जो है पासपोर्ट का इशू डेट यहाँ पे चूज़ करना है आपने। फिर जो है पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे लिख लेना है। वो लिखने के बाद जो है आपके पास डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो है यू विल हैव टू राइट द प्लेस ऑफ बर्थ ओवर हेयर। प्लेस ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है कॉन्टैक्ट्स का। तो कॉन्टैक्ट्स में जो है आपने अपने एड्रेस और मोबाइल फ़ोन वगैरह के डिटेल लिखनी है। सबसे पहले जो है आपसे यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस मांगा गया है। स्ट्रीट एड्रेस में जो है आप अपनी फुल एड्रेस लिख लोगे, जो भी आपका टाउन है, स्ट्रीट है, हाउस नंबर है या फिर मोहल्ला है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना सिटी प्रोविंस लिखोगे कि आपकी कौन सी सिटी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा प्रोविंस है। वो लिखने के बाद जो है आपने नीचे यहाँ पे पोस्टल कोड लिख लेना है। पोस्टल कोड जो है वो आप गूगल में अपने एरिया का सर्च करके देख सकते हो। उसके बाद जो है आपसे कंट्री पूछी गई है, तो आप जो है अपनी कंट्री का नेम यहाँ पे लिख लोगे जहाँ का आप एड्रेस डाल रहे हो। उसके बाद जो है सबसे ऊपर आपसे जो है मोबाइल नंबर मांगा गया है। मोबाइल नंबर का इन लोगों ने यहाँ पे गाइडेंस आपकी लिखी हुई है कि आपने जो है मोबाइल नंबर जो है इंटरनेशनल कोड के साथ ही लिखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जो है पाकिस्तान से कर रहे हो तो आपने +92 लिख के आगे अपना फुल मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद जो है आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हो। मीन्स कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, सो इस पर्सन के साथ वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, तो उसका नेम आप यहाँ पे लिख लो और फिर फ़ोन नंबर लिख लो। यहाँ पे जो है आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का जो है वो डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा एजुकेशन का। एजुकेशन के डिटेल में जो है आपने सबसे पहले यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन में आपने पहले अपने सेकेंडरी एजुकेशन मींस के अपने इंटरमीडिएट या फिर अपने कॉलेज का या फिर ए लेवल्स का जो है वो डिटेल डालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने अपने कॉलेज का नेम लिखना है। जो भी आपके कॉलेज का नेम होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। कॉलेज का नेम लिखने के बाद जो है आपने अपने प्रोग्राम का नेम लिखना होगा, जिस भी प्रोग्राम में आपने अपनी FSC इंटरमीडिएट या ए लेवल्स किया होगा। लेकिन आप जो है प्रोग्राम नेम को इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ये फिल करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद साइंटिफिक डिसिप्लिन है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि आप प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है, जो सा भी आपका डिसिप्लिन था FSC या इंटरमीडिएट या ए लेवल्स में, वो आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप नीचे अपना डिग्री का नेम लिखोगे। HSC का फुल फॉर्म आप यहाँ पे लिख लोगे अगर आपने जो है हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन का सर्टिफिकेट जो है वो लिया है। और उसी तरह जो है आप यहाँ पे भी अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन स्लैश डिग्री में भी वही लिख लोगे। लेकिन इसमें जो है आप कोई सा भी एक फिल कर लो, इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है रेड मार्क जिसके साथ लगा हुआ है वो फिल करने इंपॉर्टेंट होते हैं। या बाकी जो है ये ब्लैंक्स ये फिल करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहो इन्फॉर्मेशन तो आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे जो है आपने अपना सर्टिफिकेट का इशू डेट लिखना है, जो भी आपके FSC का इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होगा उसका। और डिप्लोमा इशूड बाय में जो है आपने बोर्ड का नेम लिखना है, जिस भी बोर्ड से आपने अपना FSC या इंटरमीडिएट या ए लेवल्स किया है
वो लिखने के बाद जो है आप लोकेशन भी लिख सकते हो कि डिप्लोमा जो है वो किस लोकेशन से आपको इशू हुआ है। अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहते हो तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ये फिल करने ज़रूरी नहीं है, जिसके साथ रेड मार्क नहीं है। उसके बाद जो है स्टेटस ऑफ स्टडीज़ में जो है आपने जो है फिनिश चूज़ करना है। लेकिन अगर आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने अभी एफएससी अपनी कंप्लीट नहीं की तो फिर आप यहाँ पे इन प्रोग्रेस चूज़ कर लोगे। लेकिन आप जो है अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने जो है सेकेंडरी एजुकेशन मींस कॉलेज अपना ख़त्म किया ही होगा, तो आप यहाँ पे फिनिश चूज़ करोगे। फिर उसके बाद जो है स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ में जो है आपने अपनी स्टार्ट डेट लिखनी है और फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपने एंड डेट लिखनी है कि किस डेट को आपकी डिग्री ख़त्म होनी है या ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर आप फ्यूचर डेट भी डाल सकते हो और पास्ट डेट भी डाल सकते हो, जहाँ जब भी आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होनी है या ख़त्म होनी थी। ग्रेजुएशन मींस कि यहाँ पे जो रेलेवेंट ग्रेजुएशन है आपके कॉलेज की, आपके सेकेंडरी एजुकेशन की। फिर यहाँ पे जो है आपने नॉमिनल लेंथ में जो है वो अपने ईयर चूज़ करने हैं, जितने भी ईयर्स का आपका जो है वो प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 ईयर्स चूज़ करते हैं, हमारा कॉलेज जो है वो 2 ईयर्स का होता है। उसके बाद जो है आपने ऑनर्स एंड डिस्टिंक्शंस का ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, कि आपने अगर कोई जो है वो अवार्ड्स वगैरह डिस्टिंक्शंस वगैरह ली हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। वो उसके नीचे जो है आपने फिर कंट्री अपनी चूज़ करनी है कि किस कंट्री में आपका कॉलेज लोकेटेड था, आपने किस कंट्री से अपना कॉलेज पढ़ा है। उसके बाद जो है आप सिटी लिखोगे, जिस भी सिटी में आपका कॉलेज लोकेटेड था उसका नाम आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आपने स्टडी लैंग्वेज चूज़ करनी है। स्टडी लैंग्वेज जो है आपने इंग्लिश ही चूज़ करनी है, चूँकि हमारी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना एवरेज ग्रेड लिखना है। एवरेज ग्रेड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मेरे 88% मार्क्स हैं तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ 88, और मैक्सिमम मैं जो है फिर टोटल लिख लूँगा, टोटल 100 होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने अपनी परसेंटेज लिखनी है, यहाँ पे परसेंटेज ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे जो है आपने अपनी टोटल परसेंटेज लिख लेनी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप मार्क्स लिख सकते हो और फिर यहाँ पे आप अपने टोटल मार्क्स लिख लो कि इतने में से इतने आपने मार्क्स लिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप फर्स्ट सेकेंडरी एजुकेशन की डिटेल डालोगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है फिर अपनी बैचलर्स की डिटेल भी डालोगे। तो उसके लिए आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक पर क्लिक करोगे। इंसर्ट न्यू ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप सबसे पहले लेवल ऑफ एजुकेशन में अपना बैचलर्स डिग्री चूज़ करोगे। उसके बाद जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ लिखोगे, प्रोग्राम नेम लिखोगे, फिर आप जो है डिसिप्लिन लिखोगे, फिर अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन स्लैश डिग्री का नाम आप यहाँ पे लिखोगे और उस डिग्री का नाम आप दोबारा डिप्लोमा नेम में यहाँ पे लिख लोगे। इनमें से कोई एक आप फिल कर लो। उसके बाद जो है आप कि जब डिग्री कंप्लीट हुई, आपको जब जो है आपका बैचलर्स का सर्टिफिकेट इशू हुआ, उस वो डेट आप यहाँ पे लिख लोगे। और इशूड बाय में जो है आप HEC लिख सकते हो। और उसके बाद जो है आप इशू लोकेशन में भी लोकेशन डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहे तो आप इसको खाली छोड़ दें। फिर स्टेटस ऑफ स्टडीज़ में जो है अगर आपने अभी अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, 8 सेमेस्टर आपके पूरे हो गए, तो आप यहाँ पे फिनिश डालो। और अगर आपने जो है अभी अपना बैचलर्स नहीं किया, आप 8 सेमेस्टर में हो या 7th में हो, तो फिर आप यहाँ पे इन प्रोग्रेस डालो। हम यहाँ पे फिनिश डालते हैं। उसके बाद आपके पास है स्टडीज़ का स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे जो है आप अपना स्टडीज़ का स्टार्ट डेट डाल लोगे। यहाँ पे आप जो है पहले ईयर लिखोगे और ईयर के बाद जो है आप यहाँ पे मंथ लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडमली कोई सा भी ईयर और मंथ चूज़ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है आपने एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिखनी है। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट मीन्स कि वो डेट जिस पे आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होनी है या फिर आपकी ग्रेजुएशन जब ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी, तो फिर वो आप डेट डाल लो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले से जो है वो ग्रेजुएटेड हो या अभी ग्रेजुएट होने वाले हो, तो उस अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे डेट डाल लोगे। वो डालने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आओगे, सस्पेंशन ऑफ स्टडीज़ को एम्प्टी आप छोड़ दोगे। उसके बाद जो है नॉमिनल लेंथ में आप जो है 4 ईयर्स चूज़ करोगे। चूँकि हमारा बैचलर्स पाकिस्तान में 4 ईयर्स का होता है, तो हम यहाँ पे 4 ईयर्स चूज़ करेंगे। 4 ईयर्स चूज़ करने के बाद जो है आप आओगे नीचे। नीचे आपसे फिर ऑनर्स डिस्टिंक्शंस का पूछा गया है। अगर आप ये डालना चाहो आपके पास है तो डालो, अगर नहीं डालना चाहते इसको एम्प्टी छोड़ दो। फिर कंट्री में जो है आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है, जिस भी कंट्री से आपने यूनिवर्सिटी पढ़ी है। फिर यूनिवर्सिटी का सिटी नेम आपने लिखना है, जिस भी सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। उसके बाद जो है स्टडी लैंग्वेज में आपने इंग्लिश ही चूज़ करना है। फिर यहाँ पे आपने नीचे अपना CGPA लिखना है। अगर आपका CGPA फॉर एग्जांपल 3.9 है तो यहाँ पे 3.9 लिख लो। फिर नीचे मैक्सिमम में आपने टोटल CGPA लिखना है कि कितने में से आपका CGPA कैलकुलेट होता है। उसके बाद जो है आपके पास टाइप ऑफ बैचलर यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बैचलर्स अपना किया है तो यहाँ पे प्राइवेट चूज़ कर लो, और अगर आपने पब्लिक मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया है तो यहाँ पे आप पब्लिक चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है लैंग्वेजेस का।
लैंग्वेजेस के सेक्शन में सबसे पहले आप अपनी नेटिव लैंग्वेज मतलब कि आप अपनी मादरी ज़ुबान चूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप अपनी मादरी ज़ुबान पंजाबी, पश्तो, उर्दू जो भी आपकी है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपनी चूज़ करोगे। मिनिमम जो है वो आपकी B2 होनी चाहिए। तो आप जो है B2 या उससे अबव ही चूज़ कर सकते हो। अगर आपने जो है आइल्स वगैरह किया है तो उस पे आपका जो है वो ये लेवल जो है वो आ रहा होगा कि आपका प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, तो आप जो है उस सर्टिफिकेट से लिख लो। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप B2 या C1 डाल लो। प्रोफिशिएंसी चूज़ करने के बाद जो है अगर आपने टेस्ट वगैरह कोई दिया है तो यहाँ आप उसकी डेट्स वगैरह डाल लो, टेस्ट का नेम डाल लो और फिर उसकी डेट डाल लो और फिर आगे जो है आप अपना बैंड लिख लो। लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो आप इसको खाली छोड़ दो। ईयर्स ऑफ इंग्लिश स्टडी एक्सपीरियंस में जो है आप 16 डालोगे अगर आप बैचलर्स कर चुके हो, और अगर आप जो है मास्टर्स कर चुके हो तो फिर 18 डालो, या फिर अगर आप जो है अपनी FSC की हो तो फिर आप जो है यहाँ पे 12 डालो। वो डालने के बाद जो है आप आओगे एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में। एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में आप तभी डिटेल डालोगे अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है या जॉब की है। तो अगर आपने की है तो आप जब एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपने इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल डाल लेनी है। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है जहाँ पे आपने जॉब या इंटर्नशिप की, फिर आप उसके बिज़नेस का टाइप लिखोगे कि अगर वो एग्रीकल्चरल कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, IT कंपनी थी, जो भी थी, आप यहाँ पे उसका टाइप डाल लोगे। उसके बाद जो है आप अपनी पोजीशन डाल लोगे कि आप जो है उसमें किस पोस्ट पर काम कर रहे थे, आप जो है क्लर्क थे या आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जो भी थे आप यहाँ पे वो लिख लोगे। फिर आप उसकी डेट्स यहाँ पे लिख लोगे। अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे आप करंटली एम्प्लॉयड जो है इसको टिक कर लोगे कि मैं अभी भी वहीं पे जॉब करता हूँ। वीकली आवर्स में जो है आप जो है पर डे के जितने आवर्स जो हैं वो आपके होते हैं उसको वर्किंग डे से मल्टीप्लाई करो तो आप के यहाँ पे वीकली आवर्स आप लिख लोगे अगर आप लिखना चाहते हो। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी आप अगर लिखना चाहते हो तो कंपनी में जितने टोटल एम्प्लॉयज़ है उनका नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप नहीं चाहते तो उसको भी एम्प्टी छोड़ दें। अगर आपने एक जगह से ज़्यादा जो है कंपनीज़ में काम किया है तो फिर आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके मज़ीद कंपनीज़ की डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हो कि मैंने यहीं पे भी जॉब की है। उसके बाद आप आओगे एक्टिविटीज़ पे। एक्टिविटीज़ में जो है आप अपनी एक्टिविटीज़ डाल सकते हो। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर अगर आपकी कोई है हॉबीज़ है या फिर अगर आप जो है कोई वॉलंटियर वर्क कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स डालने के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे आप नेचर ऑफ़ एक्टिविटी चूज़ करोगे। स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स कर लो। फिर यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आप के साथ आपने वो एक्टिविटी करी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे डेट्स डालोगे कि कब से कब तक की है। उस वो डालने के बाद जो है आप आओगे रेजिडेंस में। रेजिडेंस में जो है आप अगर अपने कंट्री से बाहर रह चुके हो तो फिर आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके अपनी कंट्री से बाहर रहने की डिटेल जो है वो डाल लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आप अगर 1 साल 2 साल 3 साल दुबई में रहे हो या 1 साल 2 साल कहीं और यूरोपियन कंट्री में रहे हो या फिर आप जो है एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट कहीं पे गए थे तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। कंट्री चूज़ करोगे, फिर पर्पस ऑफ स्टे चूज़ करोगे, फिर डेट्स डालोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है 1 साल के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम पे गए थे या फिर अगर आप जो है इसमें आप जो है वो शॉर्ट ट्रिप्स की डिटेल नहीं डाल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डेज़ 15 डेज़ के लिए आप गए थे या फिर 2 महीनों के लिए गए थे वैसे जो है टूर के लिए, तो वो आप इसमें नहीं डाल सकते। आप इसमें वो डालोगे जब आप प्रॉपर वहाँ पे शिफ्ट हुए थे या फिर स्टडीज़ के लिए गए थे। अगर नहीं है तो फिर आप रेजिडेंस को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद जो है आप आओगे मोटिवेशन पे। मोटिवेशन में जो है आपने यहाँ पे अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो पेस्ट करना है या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। एटलीस्ट जो है वो 1000 वर्ड्स का कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 4000 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और इस मोटिवेशन लेटर में जो है यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया, आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो गेन करना, फिर मेरा जो है बैकग्राउंड इससे कैसे रेलेवेंट है, फिर जो है ये प्रोग्राम मुझे कैसे हेल्प करेगा मेरे गोल्स फ्यूचर के अचीव करने में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपने इस मोटिवेशन लेटर में आंसर करने हैं। इसको ध्यान में रख के जो है आप अपना मोटिवेशन लेटर कंप्लीट कर लो। फिर डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, ये आगे हम चेकलिस्ट में अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है अदर का है, तो अदर में जो है आपके पास यहाँ पे पोर्टफोलियो का लिंक है। अगर आपको कोई पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे आप उसका लिंक डाल लो। उसके बाद मेडिकल इन्फो, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस है, आपकी कोई बीमारियाँ वगैरह है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लो। फिर यहाँ पे जो है आप यहाँ एडिशनल रिक्वेस्ट अगर आपकी कोई है इनसे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इंफॉर्मेशन सोर्स में जो है आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर लो। कि उसके बाद जो है आप आ जाओ नीचे चेकलिस्ट पे। चेकलिस्ट में आपकी यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है। तो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का तो आप जो है यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो।
क्योंकि इसके साथ येलो मार्क है, तो येलो मार्क जौन सी ऑप्शंस के साथ होता है उसमें जो है आपको वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपने अगर रजिस्टर किया है लैंग्वेज टेस्ट के लिए तो आप ये सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लो। अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट दिया है तो थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लो। अगर आपको लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप नेटिव स्पीकर है, तो फिर आप ये ऑप्शन चूज़ कर लो। और फिर यहाँ पे आई हैव अटैच सफिशेंट प्रूफ ऑफ माई इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, अगर आप जो है इंग्लिश का कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो। फिर यहाँ पे है आई हैव नॉट येट टेकन अ लैंग्वेज टेस्ट बट आई हैव हाई प्रोफिशेंसी लेवल इन इंग्लिश, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है, आपने यूनिवर्सिटी से लिया है, तो आप उसको सिंपली यहाँ पे अपलोड करो और फिर आप यहाँ पे ये सेकंड लास्ट ऑप्शन चूज़ कर लो कि मुझे जो है वो मैंने सफिशेंट प्रूफ अपलोड कर दिया है यहाँ पे। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो उसको भी आप खाली छोड़ सकते हो। फिर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एग्जाम्स विद ग्रेड में जो है आप अपना ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे नीचे अपलोड करोगे, क्लिक टू सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे प्रेस करके, और उसके बाद जो है आप ऊपर आई हैव अटैच्ड द फाइनल ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करके इसको ऊपर से क्रॉस कर दोगे। उसके बाद जो है आप पासपोर्ट के ऑप्शन में यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करोगे। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद आई हैव अटैच्ड माई पासपोर्ट सेकंड ऑप्शन चूज़ करके ऊपर क्रॉस कर लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड करोगे सिंपली, और आई हैव अटैच्ड माई सीवी को चूज़ करोगे। और फिर प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है वो आपका यहाँ पे आ रहा है। तो प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है ये आपका अपडेट हो जाएगा जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करोगे। तो एप्लीकेशन फ़ी आप कैसे सबमिट करोगे, ये पूरा जो है ये पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस था। और उसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ी का आपने पे करना है। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के लिए जो है आप आओगे मैसेजेस में। मैसेजेस में आने के बाद जो है आपको क्लिक हेयर टू मेक द पेमेंट का ऑप्शन दिया है। क्लिक हेयर के बाद आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास पेमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। पेमेंट का पोर्टल ओपन होने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी डिटेल सारी डालोगे। अपनी डिटेल डालने से पहले आप यहाँ पे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे इमीडिएट पेमेंट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद जो है आपने यहाँ पे लॉगिन विद योर ईमेल पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद जो है आपने कंटिन्यू पे प्रेस करना है। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद जो है आपने दोबारा कंटिन्यू पे प्रेस करना है, और उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे कि आप जो है कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, बैंक अकाउंट से, या किसी और पेमेंट मेथड से। तो आपने यहाँ पे कार्ड चूज़ कर लेना है। कार्ड चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे कार्ड का जो है वो सेक्शन आ गया है। यहाँ पे जो है आप अपने कार्ड की सारी डिटेल डाल लोगे। ये सारे कार्ड आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे कार्ड एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले आप नाम लिखोगे, फिर कार्ड नंबर, फिर डेट, और फिर वेरिफिकेशन कोड CVC जो आपके कार्ड पे नज़र आ रहा होता है वो डालने के बाद आप कंटिन्यू पे प्रेस करके अपना पेमेंट यहाँ से कर दोगे। तो आपका एप्लीकेशन जो है उसका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।